Praise God. Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह का मीठा और मधुर नाम में on the last day of this year, ये साल का सबसे आखिरी दिन, and we have very few minutes left. We thank you and we praise you. So with a very short time, we'll go into the Word of God. Please open Joshua chapter 3 and read verse 1. Now, initially, I thought of reading a couple of verses, maybe up to 5 and 6, but when I started meditating on this verse, I just stopped at verse 1 itself. So, उसका पहला ही वचन हम आज देखेंगे, and then we'll continue tomorrow morning with the same message. The title is that we will cross the Jordan. We will cross our Jordan this year. हमारी जो यर्दन है वो इस साल में हम क्रॉस करेंगे. That is the theme for the New Year message. So we'll see how much that we can see today. But please read Joshua chapter 3 and verse 1. उसका पहला वचन कोई भी व्यक्ति पढ़े. बिहान को यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले सितीम से कूच कर यर्दन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वही टिक गए और 3 दिन के बाद That's good enough. We'll just see the look at verse 1 and I want to point out two उसमें दो शब्द के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ. Now everybody know the context of this. Tomorrow we'll see couple of context and we'll see the map also कि वहां पर क्या होता है. Now Israelites they are in the plains of Moab. So उनको जो मोआब का जो मैदान है वहां पर है. So वो जो जॉर्डन रिवर है उसकी पूर्व दिशा में, they are on the east side of the river Jordan and now they have to cross the river Jordan to enter into the promised land. जो जगह कनान देश में परमेश्वर इस्राएलियों को लेकर जाने वाला है वो उसके पश्चिम दिशा. So they have to cross from east to west, but in between them is the Jordan river. वहां पर उनके बीच में है Jordan river. Now when you go to chapter 3 of the of this book, वहां पर आप देखते हैं कि the Jordan river during the harvest season was flowing. It was overflowing. In fact, it was flooded. वहां पर जैसा एक flood आता है, that is how the Jordan river is flowing. And Israelites, they are on the banks of river Jordan. वो इस Jordan की एक किनारे के ऊपर खड़े हैं and they have to cross the river Jordan. So that is where this chapter starts. Now, if you don't know the background, I'll give you one verse. Go to Joshua chapter 1 and read verse 1. So Moses is dead. परमेश्वर का सेवक मूसा जो है वो अब मर चुका है and his place is taken by the next military leader. His name is Joshua. उसका नाम है यहोशुआ. So that is how the book starts. वो कहता है, please read verse 1 and 1. यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद After the death of Moses, the servant of the Lord, यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा. Nun का पुत्र, the son of Nun, the Lord spoke to the son of Nun. Read the next verse. मेरा दास मूसा मर गया है. मेरा दास मूसा अब मर चुका है. Now you are going to take these people. अब तू जो है, you are the leader. You are going to take them to the promised land. तब तू उनको लेकर जाएगा. Continue reading. So अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसमें उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all these people, to the land which I am giving to them, the children of Israel. अब तू उठ. Now it is your turn. Moses is dead. मूसा मर चुका है. अब तेरी बारी है. तू उठ और तू इस्राएल लोगों को क्रॉस ओवर द जॉर्डन. तू यर्दन नदी के उस पार कनान देश जो मैं इस्राएली लोगों को देता हूं, जिसकी शपथ मैंने अब्राहम से खाई थी. Now you will take them to the promised land. That is the background of this and we will see continuously what is the background tomorrow. Now when you go to verse 11 of chapter 1, वहां पर परमेश्वर मूसा को कहता है, now when you reach the plains of Moab, जब तू वो मोआब जो उस यर्दन के किनारे तू आ जाएगा, now you have to wait for 3 days. अब तुम्हें 3 दिन तक रुकना है before you cross over the Jordan. जब तू क्रॉस करेगा उससे पहले for 3 days, and if you look at the Bible, there are many times the 3 days. हम कई बार देखते हैं 3 दिन के बारे में and there is a significance of the 3 days.
What is the greatest significance in 3 days? Jesus rose from the dead. यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा. That was also 3 days. So here God is asking Joshua and the children of Israel to wait for 3 days before they cross over the Jordan. Now go back to Joshua chapter 3 and verse 1. वो कहता है यहोशुआ सवेरे उठा. He woke up early. Now God is also asking, just like God said, as we read in Joshua 1:2, arise, to it. You know, many times, kitne logo ko aaj 11 o'clock, 11:30, they don't have a habit to stay awake. You know, they are probably sleepy. Or kai log to, they are sleeping. They could not attend the watch night service. So there are many times the people are spiritually sleeping. God is asking them to wake up. He says he rose early in the morning. Basically, in spiritually speaking, the earlier you wake up, it is better for you. जितना जल्दी आप उठोगे, I am talking about आत्मिक रीति से, तुम जितना जल्दी उठते हो, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है. So the first word we are going to see is wake up or arise. Let's go to the New Testament. We'll just, as I said, we'll just look at this first verse. उसके अंदर एक ही वचन के अंदर the first verse we are seeing is wake up or arise, ut. The second word we are going to see is towards the end of that verse 1, and that is they stop at the river Jordan. So we have to stop. And why we have to stop, we'll look at that. Go to Romans chapter 13 and read from verse 11 onwards. रोमियो का पत्री उसका 13 अध्याय उसका वर्स 11 से नीचे पढ़े. और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसीलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है. And do this knowing the time that now it is a high time to awake out of sleep. Now Paul is speaking to the Christian, the believers. वो विश्वासी लोग जो के रोम के अंदर है, उन लोगों से पॉल कहता है, and he is asking them to wake up. That means that somehow, spiritually speaking, they are sleeping. आत्मिक रीति से सोचा जाए तो somewhere in their life they are sleeping. वो सो रहे हैं. And he is asking them to wake up. अब तुम्हारा means it is a high time to awake out of sleep. कई लोग जो चर्च में बैठा है, those who are hearing the message, they hear the gospel, जो सुसमाचार सालों से सुन रहा है, the Spirit is speaking to you this evening that it's time for you to wake up. It is a high time. ये उस घड़ी आ पहुंची है जब तुम्हें नींद से जगने का समय है. And then he says, for now our salvation is near than we first believe. अब हमारा उद्धार और भी निकट है जब हमने विश्वास किया था. Whenever you enter into the new year, जब आप नए साल में प्रवेश करते हैं, or if it is your birthday and God is giving you a new year into your life, you are 1 year closer to your death. आप अपनी मृत्यु से 1 साल और नजदीक जाते हैं. That means that in 1 hour, when you enter into 2026, you are 1 year more closer, as Paul speaks, to your salvation. जिस घड़ी तुमने विश्वास किया था, to the Lord's coming, जब परमेश्वर आता है, उस दिन से तुम और नजदीक जा रहे हो. And that is why Paul says it's time for you to wake up. ये घड़ी आ चुकी है कि तुम जग जाओ. Continue reading. Read the next verse. रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है. Right. इसीलिए हम अंधकार के कामों को त्याज कर ज्योति के हथियार बांध ले. So he's asking you to do something. वो क्या करने के लिए कहता है? Therefore, let us cast off the work of the darkness. In fact, when we look at this chapter tomorrow, you will see what the Jordan is. यर्दन जो नदी है वो आत्मिक रीति से क्या दिखाती है? One of the things is the work of darkness. और वो work of darkness क्या है? That could be your habit that you cannot leave. हो सकता है वो तुम्हारी कोई हैबिट है जो सालों से तुमसे छूटती नहीं है.
It could be your hidden sin. वो हो सकता है वो तुम्हारा छिप कर करने वाला पाप है जो तुम सबसे छुपा के करते हो. You think that nobody knows. तुम सोचते हो कि कोई नहीं जानता. Those are the works of darkness, and there are many of them. It could be your pride. It could be your lust. Maybe you're lusting after something. It should not be a woman. Sometimes it's a money, or sometimes it's something else. You have to cast off the work of darkness and let us put on the armor of light. Why is he asking you to put on the armor of light? वो कहता है तुम ज्योति के हथियार बांध लो. Continue reading. Read the next verse. जैसा दिन को सोता है Right. जैसा दिन को शोभा देता है. Let us walk properly as in the day. Why is he saying that? जैसा दिन को शोभा देता है? Because you are, remember Jesus said, I am the light of the world. जगत का ज्योति मैं हूं. And then he says, you are also the light of the world. जैसा मैं जगत का ज्योति हूं, वैसा तुम भी जगत का ज्योति हो. That means that you are children of light. अगर आप कहते हैं कि आप मसीह है, या if you are Christian, that means that you are children of light. You are children of Jesus. आप मसीह की संतान हो. And that is why वो कहता है, let us walk properly. जैसा दिन को शोभा देता है, वैसी हम चाल चले. Continue reading, and then he gives you a list of things that you can get rid of from your life. Continue reading that verse. वैसा ही हम सीधी चाल चले, हाँ. न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन. Somehow Paul, when you look at couple of verses tonight, is lot of things about drunkenness. न व्यभिचार हाँ. और लुचपन में और न झगड़े और डा में. So many people living their life this way. वो कहता है लीला क्रीड़ा में, पियक्कड़पन में, व्यभिचार में, लुचपन में, झगड़े में और डा में. That is how the Gentiles or the people who do not know the Lord, जो परमेश्वर को नहीं जानते, they are wasting their time in these activities. पर पॉल कहता है you have to cast off those things. तुम्हें अब नींद से जगने का समय आ चुका है. Then what is he asking you to do? Read verse 14 in the same chapter. वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो. Put on Christ. Right? We saw on the Christmas day. Put on Christ. मसीह को पहन लो. अगर आज तक नहीं. Now this Paul is telling to the believers. वो जो विश्वासी है उनको कहता है, but this also applies to the non-believers. जो आज तक विश्वास में नहीं आया, जो आज तक प्रभु को अपना, यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया, God is speaking to them also that it is high time for you to wake up. अब वो घड़ी आ चुकी है तुम्हें नींद से जगने की, because the Lord's coming is near. परमेश्वर का आना निकट है. You are more closer to the day of salvation or the return of the Lord than you were yesterday or in 2025. Let's look at some other words. Go to 1 Thessalonians chapter 5. पहला थेसलोनी 5 अध्याय. Please read verse 5 onwards. Again, you will see the concept of the children of light and the children of darkness. Please read from verse 5 onwards. क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हाँ. और दिन की संतान हो. We are the children of light. You see the similarity between Romans 13 and 1 Thessalonians 5. वो कहता है you are the children of light. Because you call yourself Christian, तुम अपने आप को मसीह कहते हो, then वो कहता है तुम ज्योति की संतान और दिन की संतान हो. You are the children of the day. Continue reading. हम न रात के हैं न अंधकार के हैं. We are not of the night or not of the darkness. Continue reading. इसीलिए हम औरों की नाई सोते न रहे. Let us not sleep. When he talks about sleep और नींद की जब बात कर रहे हैं, he's talking about a spiritual sleeping. कई लोग सो रहे, that means कि वो ठंडा है. अपना मसीह जीवन के अंदर एक ठंडापन है, अपना प्रेयर लाइफ के अंदर
दे हैव एक ठंडापन आ चुका है, बाइबल रीड करने का मन नहीं करता है, दे डोंट हैव टाइम टू गो टू द चर्च और दे डोंट हैव टाइम फॉर द प्रेयर मीटिंग. एक लेजीनेस, एंड दैट इज व्हाट वी विल सी लेटर. बट एक लेजीनेस अगर तुम्हारे अंदर आ चुका है, देन वो कहता है लेट अस नॉट स्लीप एज अदर्स डू. जैसा अन्य जाति सो रहा है वैसा तुम्हें सोने का जरूरत नहीं है. यू हैव टू हैव अ गोल एंड फोकस. तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा फोकस वो तुम्हारा परमेश्वर यीशु का ऊपर होना चाहिए. एंड वो कहता है बट लेट अस वॉच एंड बी सोबर. हम जागते और सावधान रहे. कंटिन्यू रीडिंग. क्योंकि जो सोते हैं हम्म. वे रात ही को सोते हैं हम्म. और जो मतवाले होते You हैं see again the drunkenness. Somehow Paul is so much about the people, those who are drunkard, और जो पियक्कड़ में अपना समय बिताते हैं. वो कहता है वो दिन का जो व्यक्ति है और द चिल्ड्रन ऑफ लाइट वो उसको शोभा नहीं देता, इसलिए तुम्हें नहीं पीना चाहिए. That is why you should not consume an alcohol, क्योंकि वो that is not good for your testimony. When you testify before others, जब तुम दूसरे के सामने कहते हो मैं मसीह का हूं, आओ ये सुसमाचार है, ग्रहण करो. Why would people believe in your testimony if you are a drunkard? Because they are seeing the same thing that the Gentiles are doing. वो तुम्हारे अंदर भी वही काम देखते हैं जो कि अन्य जाति करता है. This kind of a thing doesn't belong to the people who are of children of light. And that is why वो कहता है those who sleep, they sleep at night. Those who get drunk, they're drunk at night. Continue reading. वे रात ही को मतवाले होते हैं. हाँ पर हम तो दिन के हैं. हाँ. विश्वास We are of light. वो कहता है हम दिन के हैं. Continue reading. विश्वास, faith and और प्रेम की love and चिरम पहनकर हाँ. और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहो. कैसे सावधान रहने के लिए कहता है? हाउ कैन यू बी प्रिपेयर्ड? वो कहता है विथ अ ब्रेस्टप्लेट ऑफ फेथ एंड लव एंड हेलमेट ऑफ होप ऑफ साल्वेशन. वो उद्धार का टोप पहनकर यू कैन बी रेडी फॉर द लॉर्ड. तुम परमेश्वर के लिए तैयार रहो. रीड वर्स 9 एज वेल. क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, God did not appoint you for the wrath, but परंतु इसीलिए ठहराया है. for कि this हम is why he has appointed you to obtain salvation through Lord Jesus Christ, कि तुम यीशु मसीह के द्वारा उस उद्धार को ग्रहण करो. And then he says वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम जागते हो या सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए. Whether you are sleeping और जागते हो, तुम किसके लिए जियो? परमेश्वर के लिए जियो. एक नया साल में एक निर्णय ले सकता है. What is the takeaway out of this? Don't just read it for the reading. Don't just hear it for hearing. सिर्फ सुनने के लिए या अच्छा लगने के लिए नहीं. वो कहता है मैं नया साल में क्या निर्णय ले सकता है? वो कह सकता है हम दिन का हूं. I am the child of God. मैं परमेश्वर का बेटा हूं. अगर मैं ऐसा कोई काम करता हूं जो परमेश्वर का बेटा होने के नाते मुझे शोभा नहीं देता है, I want to give up that. मैं वो छोड़ना चाहता हूं. Then वो कहता है by faith, love, विश्वास और प्रेम and with a breastplate of salvation. वो कहता है वो उद्धार का मुकुट को पहनकर हम सावधान रहे. साथ ही साथ वो कहता है इन वर्स 9 क्योंकि परमेश्वर ने हमको क्रोध के लिए नहीं ठहराया पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया है. अगर आज तक वो उद्धार को प्राप्त नहीं किया, देन एक निर्णय ले सकता है ये साल के अंदर. रिमेंबर व्हाट इज द टाइटल? I want to cross my Jordan this year. ये साल में मैंने मेरे लिए जो जॉर्डन तैयार किया है उसको मैं ओवरकम करना चाहता हूं. ये दैट इज द निर्णय. एक वो निर्णय आप ले सकता है. लेट्स गो क्विकली टू couple of other verses. Go to Hebrews chapter 6. Read verse 11 and 12. Hebrews chapter 6 verse 11 and 12.
पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। We desire that each one of you show the same diligence to the full assurance of hope till the end. वो लिखने वाला कहता है हम चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए प्रयत्न करता रहे. Read the next verse, verse 12. ताकि तुम आलसी न हो जाओ, हाँ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। that you do not become sluggish. In other words, some other translation would say that you do not become lazy in your walk. तुम ढीले ना पड़ जाओ, ठंडे नहीं पड़ जाओ, but imitate those who through faith and patience inherit the promise. ताकि तुम जो परमेश्वर विश्वास और धीरज के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वारिस हो. यहां पर एक और निर्णय ले सकता है. What decision that you can take? I want to receive that promise. मैं वो प्रतिज्ञा का वारिस बनना चाहता. I want to inherit the God's promise of eternal life. मैं वो अनंत जीवन को पाना चाहता हूं. जैसा पॉल वो कहता है फिलिपियंस 3 का अंदर, मेरा एक ही आशा है, मैं कोई ना कोई रीति से मरे हुए में से जी उठने पर पहुंचू. By any means, I want to attain the resurrection from the dead. क्या आप वो भी वही सोचता है? Is that your goal this evening? क्या वो आपका गोल है? You have to think about it. आप सोचे, this is not just a gathering. हमने कोई खाना पिया, नाश्ता गाया, 4 गाना गाया, and then we left home. You have to come up to what is the Jordan in your life? तुम्हारा जीवन में वो यर्दन क्या है? You have to recognize that. वो आप पहचाने. What is that habit or what is that hidden sin that you cannot get rid of? वो ऐसा कौन सी चीज है जो तुम्हें परमेश्वर के पास आने से रोकती है? That is something that you have to identify. वो तुम्हें identify करना है. Go to Proverbs chapter 6 verse 9, 10 and 11. नीति वचन उसका 6 अध्याय उसका 9 से लेकर 11 वचन तक पढ़े. Proverbs chapter 6. हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? हे आलसी, लिखने वाला क्या कहता है? How long will you slumber, O sluggard? तू कितने टाइम तक सोता रहेगा? When will you rise from your sleep? कब तू उठेगा? It is time for you to wake up. तुम्हें नींद से जगने का समय. Then he gives a practical example. The people who are lazy in their day-to-day life, वो कहता है उनका जो बुरा वक्त है उसी टाइम में शुरू हो जाता है. The people who do not hard work, जो सेक्युलर जीवन के अंदर जो हार्ड वर्क नहीं करता उसका अधोगति शुरू हो जाता है. But the question is, how long will you slumber, O sluggard? When will you rise from your sleep? तू कब उठेगा? That is what the Spirit is speaking to each one of you. वो परमेश्वर का आत्मा उसका वचन से आपसे बात करता है. Where you have to wake up, that's something you have to find out. कहां से आपको उठना है, किस बात में आपको उठना है या जगने की जरूरत है, that is something that you know. I don't know. परमेश्वर जानता है और आप जानता है. Go to Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. Please read from verse 14 onwards. Actually, read from verse 8. उसका 8 वचन से नीचे पढ़े. Ephesians chapter 5 from verse 8 onwards. क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो. You see the same concept in every letters of Paul. Paul is speaking the same thing. वो कहता है तुम पहले अंधकार थे. You were the darkness before you come to Christ. जब तुम मसीह के पास नहीं आए तुम अंधकार थे. That is how you were living your life. But when you heard the gospel, जब तुमने ये सुसमाचार का वचन सुना, continue reading. सो ज्योति की संतान की नाई चलो. That is how you should walk.
as the sons of light, as the children of light. Continue reading. क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है. In fact, go to verse 14 onwards. Skip couple of verses because of the lack of time. Verse इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग. Hey, सोने वाले जाग. Therefore he says, awake, you who sleep, rise from the dead, and Christ will give you light. अगर आज आप जगता है, वचन कहता है परमेश्वर अपना ज्योति तुम्हें देगा. Then continue reading. What you have to do in practical life. इसीलिए ध्यान से देखो हाँ. कि कैसी चाल चलती That है. is something you have to self-examine. You know, मैंने कहा दो शब्द है वो जोशुआ 3 उसका 1 के अंदर. First is rise. He rose early. वो कहता है जोशुआ उस दिन सवेरे जल्दी उठा. And then it says the Israelites stop at the Jordan River. वो वहां पर they stop. You have to stop, pause during this last few minutes of this year. ये साल का अंतिम मिनट्स के अंदर you have to pause and stop and think. ये पूरा साल या फिर अब तक how was your walk with Christ? तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के सामने कैसा था? See that you walk circumspectly and not as fools but as wise. Are you walking like a fool? Are you still sleeping? If you're still sleeping, then you're a fool because you know that you have to wake up. If you still don't wake up, if you don't still let those things let go from your life, you are still not the children of light. Walk as a wise. Continue reading verse 16. और अवसर को बहुमोल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं. Redeeming the time because the days are evil, Paul says. Day by day, year by year, एक एक साल आता जाता है. You know, the new year आता है जाता है, Christmas आता है जाता है, right? If there is no change, if no transformation happening into your life, then the new year is nothing. It's just, you know, the day is changed. You know, आज कौन सा दिन था? Wednesday. Tomorrow is Thursday. Nothing changes. कुछ नहीं बदलने वाला है. It will be just a different day, 2026. अवसर को बहुमूल्य समझो. Read verse 17 and 18 also. इस कारण निर्बुद्धि न हो. इस कारण निर्बुद्धि ना हो. Don't be foolish. हाँ. पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा. Ask the Lord, what is your will for me? परमेश्वर तेरा इच्छा मेरा जिंदगी से क्या है? What do you want from my life? मेरा जिंदगी से तू क्या चाहता है? Read the next verse. Again, Paul will talk about the drunkenness. और दाख रस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है पर आत्मा से परिपूर्ण होता. Do not be drunk with wine, in which a dissipation, but be filled with the Spirit. You see, every single verse that you saw today, Paul is dealing with somewhere about the drunkenness. Now go to Revelation chapter 3. Revelation chapter 3. Now, in Revelation chapter 3, we study about one church. वो चर्च का नाम है, उसका पहला वचन में कौन सा चर्च है? Sardis, right? Sardis. Look what John is writing about this church, Sardis. By the way, ये जो church था, this church, you know where this is, right? उसके पहले जो दो चर्च आते हैं, Thuatira. So it is the 50 miles east to Thuatira and 30 miles, almost 30 miles south to the church Smyrna. This is in Asia Minor. This is a modern day Turkey. Now in AD 17, what is the history? AD 17 के अंदर there was a big earthquake that came, and this Sardis, the entire town was destroyed. Then Romans came in. जब रोमन आए उन्होंने फिर से एक कॉलोनी बसाई, and that is this church Sardis. Basically ये जो Sardis जो था उस टाइम के अंदर, it was very high wall. It's like a kind of a fortress. Around 500 miles ऊंची उसकी
वॉल थी, सो इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कोई उसको ब्रीच कर पाता. बट देयर वाज अ सीरियन किंग एंटियोकस ने he broke the उसने एक उस जो फोर्ट था उसके अंदर there was a crack on the northern side of the wall and his army actually entered into Sardis and that is how they got the victory. The Syria got victory over this Sardis. So that is just the background of this church. But go to verse 2. Read verse 1 and 2. और सार्दिस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, हाँ. यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू उस चर्च को परमेश्वर कहता है मैं तेरे काम को जानता हूं. What you are doing in your secret, तुम जो छुपा के जो करते हो वो और सबके सामने जो करते हो वो सारा काम को परमेश्वर जानता है. That is why one of the attribute of God is omniscient. परमेश्वर जो सब कुछ जानता है. Continue reading. कि तू जीवता तो कहलाता है. You are alive. Physically, शारीरिक रीति से तुम्हें देखने में तू जिंदा है, बट वो कहता है तू मरा हुआ है. Spiritually you are dead. Continue reading. जागृत रह. हाँ. और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया. Be watchful, strengthen the things which remain, for I have not found your work perfect before God. इस चर्च को परमेश्वर इस कंडेमिंग द चर्च और उसको कहता है मैंने तेरा कोई भी काम को पूरा नहीं पाया है. क्या परमेश्वर आपके बारे में ये कहता है आज कि मैंने तुम्हारा जो काम को पूरा नहीं पाया है, or you are not ready, or you are not prepared for his coming? Continue reading. Read verse 3. सचेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी. Remember therefore how you have received and heard, hold fast and repent. वो कहता है जो शिक्षा तूने प्राप्त की, जो सुनी, उसमें बना रहे और मन फिरा और जागरूक न रहेगा तो मैं चोर की नाई आऊंगा और कदापि तू जान नहीं सकेगा मैं किस रीति से आया. Then in verse 5, I will skip couple of verses, but वो कहता है जो जय पाए है इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसके नाम जीवन का पुस्तक में से किसी रीति से, परमेश्वर कहता है मैं काटूंगा नहीं. I am not going to blot out their name from the book of life. That is why without sanctification, आपका शुद्धिकरण होने के बजाय there is no transformation. There is no new year without sanctification. We will see this point tomorrow. But यहां पर वो कहता है तुम जग जाओ, तुम जागृत हो जाओ, तू जीवित कहलाता है पर तू मरा हुआ है. अगर हमारा भी ऐसा ही दशा है, then God is speaking to you. परमेश्वर आज आपसे ये कहता है. Let me conclude it with couple of verses from Jesus. Go to Luke chapter 10. Go to 21. We'll skip couple of verses. Go to Luke chapter 21. Read verse 34 to 36. Luke 21. Read verse 34 onwards. इसीलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन कुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे की You see again, Jesus is talking, but what take heed to yourself, lest your heart be weighted down with carousing. इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए. That you become lazy somehow in your spiritual journey. और वो कहता है वह दिन तुम्हारे ऊपर फंदे की माफिक आ पड़े. Continue reading. क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा. इसलिए जागते रहो. Watch therefore and pray always. अगर प्रार्थना करने में आप ठंडा है तो
परमेश्वर का वचन कहता है प्रे ऑलवेज, बी वॉचफुल, so that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass, ताकि तुम बच जाओ, and to stand before the Son of Man. One day you have to stand before the Lord. एक ना एक दिन, मैंने कहा एक साल जब जाता है, you are more closer to your death. आप एक साल अपना मौत से करीब जाता है. One day you will die. One day you have to face the judgment. You have to stand before the Lord and give an account. तुम्हें परमेश्वर को जवाब देना पड़ेगा. उसके लिए यीशु कहता है that will come to pass, and to stand so that you can stand before the Son of Man. साथ ही साथ वो कहता है तुम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो. That is what God is looking. Let me conclude it with, go to James chapter 1. Why we need to stop and pause? क्यों हमें रुकने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है? Go to James chapter 1, read verse 23 onwards. याकूब की पत्री chapter 1 and verse 23 onwards. क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो हाँ. और उस पर चलने वाला ना हो, हाँ. तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है. If anyone is a hearer of the word and not the doer, he is like a man observing his natural face in the mirror. Right? The new year के time में there will many people who will take a resolution. ये साल में मैंने बहुत weight gain किया है. I want to lose some weight. I'm fat. You know, I will do exercise and I will do this and I will do that. I will go to gym or probably I'll do this and that. मैं healthy खाना खाऊंगा. Fried I will leave. I'll start eating salad and all that thing. You'll make many resolutions. Think about it. When you stop and pause, you are standing at the mirror. तो मिरर के सामने खड़ा है and you are watching yourself कि मैं ये साल में कैसा था और मैं नेक्स्ट साल में क्या अचीव करना चाहता हूं. What I want to achieve and how was my life this year. What things that I want to, like कई लोग सोचता है ये मुझे यहाँ एक पिंपल है, मैं उसके ऊपर मेकअप डालना है. I want to hide it. जब वो मिरर के सामने खड़ा है, right? They will see that my hair यहाँ पर एक व्हाइट है, उसके ऊपर मुझे कलर लगाने का जरूरत है. राइट? लॉट ऑफ कॉस्मेटिक थिंग्स दैट पीपल थिंक ऑफ. या मैं मोटा हो गया, आई वांट टू गेट थिन. थिंक अबाउट योर स्पिरिचुअल लाइफ. अपना आत्मिक रीति, अपना आत्मिक जीवन के बारे में सोचे. वेयर यू हैव टू वेक अप. कहां पर आपको सुधार का जरूरत है. कंटिन्यू रीडिंग दैट. Like a man observing his natural face in a mirror. Continue reading next verse. इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुम ऐसा नहीं बनना. Don't be like the man जो मिरर में अपने आप को देखता है, देखकर चला जाता है, वो कोई चेंजेस नहीं करता है. You don't need to be like that person. Continue reading. और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था. तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था. Read the next word. Instead, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, हाँ. वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर हाँ. वैसा ही काम करता है. सुनकर नहीं पर, instead the James is saying don't be the listener. सिर्फ सुनने वाले नहीं, वचन के सुनकर चलने वाले बनो. I think that is where we will stop. परमेश्वर इस वचन से आपको आज विल ऑल स्टैंड अप. विल रीड साम्स 136 भजन संहिता 136 हम बारी बारी से पढ़ेंगे. और उसका वचन जो एंड होता है वो ऐसा कहता है, हिज मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर. साम्स 136 उसके अंदर 26 वचन है और वो बोलते बोलते विल एंटर इनटू द न्यू ईयर. वो बोलते बोलते हम नए साल में प्रवेश करेंगे. वो सब लोग, जब मैं उसका एक वचन में बोलूंगा, आपको बोलना है क्योंकि वो उसकी करुणा सदा की है. हिज मर्सी इज एवरलास्टिंग. यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है. जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो. जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो.
उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कार्य नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया। उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया। उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई। उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया। उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्रियों के पहलौठों को मारा। उसकी करुणा सदा की है। उसके बीच से इस्राएलियों को निकाला। उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया। उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया उसकी करुणा सदा की है। और इस्राएल को उसके बीच से पार कर दिया। उसकी करुणा सदा की है। और फिरौन की सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया। उसकी करुणा सदा की है। वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला। उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे। उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा। उसकी करुणा सदा की है। अमोरियों के राजा सिहोन को उसकी करुणा सदा की है। और बाशान के राजा ओग को घात किया उसकी करुणा सदा की है। और उसके देश को भाग होने के लिए अपने दास इस्राएलियों का भाग होने के लिए दे दिया। उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली उसकी करुणा सदा की है। और हमको शत्रुओं से छुड़ाया है। उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को आहार देता है। उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। आइए हम अपना आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम आया तब से लेकर परमेश्वर, हालेलुया, अच्छा आराधना दिया प्रभु। तेरा जीवित वचन से परमेश्वर हमसे बातचीत किया प्रभु जी। दो शब्द जो हमने सीखा, वी नीड टू वेक अप, हालेलुया। अगर आज तक हम नींद में सो रहा है, इफ वी आर स्पिरिचुअली स्लीपिंग, हालेलुया, द गॉड्स वर्ड स्पीक टू अस दिस इवनिंग, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमसे बात करता है। तुम बहुत टाइम नींद में सो लिया, अब तुम्हें जगने का समय आ चुका है। जब तुमने विश्वास किया था उस दिन से उद्धार का दिन निकट है, हालेलुया। प्रेरित पौल कहता है, हालेलुया, तुम, हालेलुया, मतवालेपन में या फिर झगड़े में या प्राइड और लुचपन के अंदर अपना समय न बिताओ। समय को बहुमूल्य समझो। द टाइम इज प्रेशियस, द टाइम इज रनिंग आउट। एक साल आता है, एक साल जाता है। परमेश्वर कुछ ना कुछ बदलावट आपका जिंदगी के अंदर चाहता है। जैसा वो सार्डिस का चर्च को कहता है, तू जिंदा तो है पर तू मरा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर तुम्हारे बारे में कहे, तू जिंदा तो है, तू आत्मिक रीति से मरा हुआ है। यू नीड टू वेक अप। जीसस सेड, जागरूक रहो, बी वॉचफुल। नोहा का दिन के अंदर भी लोग खाता पीता था, मैरिजेस होते थे। They did not hear the message that Noah was preaching. उन्होंने नोहा का संदेश का ऊपर ध्यान नहीं दिया। We are living in the last days. हम अंत का समय में हम जी रहा है। We are living in the times of Noah, the time of Lot. God is speaking to you today. परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। तुम्हारा यर्दन को क्रॉस करने का समय आ चुका है। You have to cross your Jordan. This is the year of crossing the Jordan. ये साल परमेश्वर तुम्हें देता है तो मैं मेरा जीवन का जो यर्दन है उसको मैं क्रॉस करना चाहता हूं। मेरा शक्ति से नहीं, परमेश्वर का शक्ति से। By faith, I want to cross the Jordan. I want to inherit the promise.
मैं परमेश्वर का उस प्रतिज्ञा को by faith I want to receive it. I want to walk worthy of the days of light. जैसा ज्योति का संतान को शोभा देता है, वैसा मैं चलना चाहता हूं. We want to look ourselves into the mirror. हम अपने आप को दर्पण के अंदर देखें. हम अपने आप से पूछे, examine yourself. क्या चीज को, what things that you have to cast off from your life as we are entering into this new year. God can only do the miracle if you sanctify yourself. अगर आपका पवित्रीकरण नहीं है, अगर आप जय पाया हुआ व्यक्ति नहीं है, अगर आपका नाम उस जीवन का पुस्तक में लिखा नहीं है, then this new year is nothing for you. ये नया साल आपके लिए कुछ भी नहीं है. It is just the day is changing, the date is changing, the year is changing. You are more closer to your death. The time is short, it's running out. Examine yourself. हम अपने आप को परख के, परमेश्वर हमको बदल डाल. Lord make us worthy. हमको योग्य बना. जिस प्रकार यीशु कहता है, जब उसका पुत्र का आना होगा, when the son of man come, he should find you worthy. वो तुम्हें योग्य पाए. आप खुद जानता है आप उसका योग्य हो कि नहीं. If you are prepared and ready for his rapture, क्या आप उसके लिए तैयार है? अगर आज आप मरता है, what about your eternity? हम इस बारे में सोचे. थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया. परमेश्वर ये नया साल हमको दिया है. नया साल में परमेश्वर हमको प्रवेश कराया. हम परमेश्वर तुझे धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी. पिछला पूरा साल परमेश्वर हमारे साथ था, हमारे परिवार के साथ था प्रभु जी. हमको दिया हुआ आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु जी. हमारा चर्च के लिए धन्यवाद, चर्च का हर एक परिवार के लिए धन्यवाद प्रभु जी. पास्टर कुरियन उनका परिवार के लिए धन्यवाद प्रभु जी. हमारा बच्चों के लिए धन्यवाद प्रभु जी. हमारा माँ बाप के लिए धन्यवाद प्रभु. हमारा ग्रैंड पेरेंट्स के लिए धन्यवाद प्रभु जी. थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया. धन्यवाद 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 प्रभु जी, हालेलुया. ये नया साल में परमेश्वर हमको सहायता कर प्रभु जी. लॉर्ड यू प्रोटेक्ट अस एंड लीड अस लॉर्ड. जैसा मनीष भाई ने कहा, जैसा मूसा कहता है, अगर परमेश्वर तू हमारा साथ नहीं है, हमको आगे लेकर मत जा. If you are Lord, if you are not with us, don't take us into this new year. हम आगे जाना नहीं चाहता, मूसा कहता है. ऐसा हम भी कहे परमेश्वर से, Lord, I want to cross my Jordan. परमेश्वर में मेरा यर्दन को ये साल में क्रॉस करना चाहता हूं. What is the barrier? ऐसा कौन सा चीज है जो आपको परमेश्वर को ग्रहण करने में रोकता है? Identify, cast off by faith, विश्वास के साथ में. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद प्रभु जी नया साल के लिए, यीशु का नाम में, आमेन.